Okay, starting with the recursive sequence. So a sequence which refers to previous terms to define the next term is called recursive. Every recursive formula must include a starting place that is initial conditions. Right? Now, the basic gist of the recursive sequence is that it is such type of sequence whose very next term, or you can say the current term, यानी एक current point of index के ऊपर आप जो एक term calculate कर रहे हैं, in order to calculate that term, you are basically including, or in other words, you are basically dependent upon the previous term, right? And that dependency on the previous term is basically called recursion, right? Or recursiveness, right? Now, in order to build up such the formulas for such recursive sequences whose every term is dependent upon the previous term, we are going to have a starting point, an initial point, and that point is called initial conditions. In the real world, basically, if we take time as an independent variable, then at every point of time, starting from 0, then 1, 2, 3, 4, and so on. Similarly, some negative values, that is -1, -2, -3, and so on. Say these are representing minutes or time, seconds, or whatever it is. The point is that this is basically called as the current time. And in a realistic or real time scenario, we can't have a negative value of the time, right? So what we from where we can start is that we are going to have some initial conditions. For example, if we want to calculate the value of a certain thing at time t equals to 2, then for that, being a recursive sequence, we need the values at 1, we also need the values at 0. But in a realistic scenario, referring to the real time scenario, we may not need such values that are belonging to some negative values that exist at time t equals to -1, at time t equals to -2. So in most of the sequence that you will see, you are going to monitor that or analyze that these values are mostly discarded. We are not generally going for the negative values. But in certain cases, when we are talking about a non-realistic scenario that is away from the real life, then there may be some sequences that may cater on or that may include the negative values, right? But mostly in a sequence, we are going to play with the positive values starting from 0 up to any end that can be infinity, right? So first, let's start with an example. For example, I am starting with a sequence Ck is equals to Ck minus 1 plus K times Ck minus 2 plus 1, right? With some initial conditions, that is C naught is 1,
and C1 is equals to 2, and we have to find C2, C3 and C4, right? First of all, some important points related to a recursive sequence. What is the what you can say that what is the yeah, or which variable is basically representing a particular term in a sequence? Anyone can answer? मैम सी के जो है CK, right? And how we read CK? We can say that it is the kth term of the sequence. What is the K playing its role here? K is मैम ये basically टर्म का doing the नंबर बता रहा है. it is being basically doing the job of indexing. वो indexing कर रहा है, यानी 0th term, 1st term, 2nd term, 3rd term, 4th term and so on, right? So एक term किस variable से represent हो रही है? C से, यानी term जो है वो C है, उसका उसकी पहली पोजीशन, उसकी दूसरी पोजीशन, उसकी 11th पोजीशन, उसकी whatever position, that is represented by the index K. यहाँ तक बात क्लियर है सबको? Okay, अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है. C, the variable C is representing a term of the sequence. उसकी कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है ना, बेटा म्यूट कर दें. उसकी कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है ना. अब वो पोजीशन 1 पे 2 पे 3 पे उसको छोड़ देते हैं. एक पर्टिकुलर टर्म ऑफ द सीक्वेंस किस वेरिएबल से रिप्रेजेंट हुई? C से. अच्छा, अब उसकी पोजीशन बतानी है कि जी आप पहली टर्म की बात कर रहे हैं, आप 7th टर्म की बात कर रहे हैं, आप 8th की बात कर रहे हैं. उसको बताने के लिए, यानी टर्म को के इंडेक्स को बताने के लिए, वी हैव चूजन अ वेरिएबल k दैट इज बेसिकली डूइंग द इंडेक्सिंग. जैसे अगर मैं C1 को कहूंगी तो मैं कहूंगी कि C1 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस. फर्स्ट कहां से आया? इस 1 से. टर्म मैंने किसके लिए इस्तेमाल किया? C के लिए. अगर मैं C4 की बात करती हूँ तो मैं इसे कहूंगी इट इज द फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस. फोर्थ इज द इंडेक्स and the variable that is representing that term is in fact C. ठीक? अच्छा, now according to the given formula that is written in the red, कि आपने कोई भी kth term, मैंने अब ना मैं पहली की बात कर रही हूँ, ना मैं 4th की बात कर रही हूँ, ना मैं 11th की बात कर रही हूँ, मैं एक generalized बात कर रही हूँ. That is, in order to find any kth term of a sequence, this is the formula for it. That is, at the background, this computation is going to be held in order to generate the kth term. And what this formula apparently tells us is that the kth term of a sequence is dependent upon the very previous term and the previous term next to it. यानी वो k minus 1th term पे भी डिपेंडेंट है, वो k minus 2 term पे भी डिपेंडेंट है. उसकी डिपेंडेंसी किसी एक प्रीवियस टर्म पे नहीं है, रादर 2 प्रीवियस टर्म्स पे. ठीक? So with this formula we can easily generate the value at for any value of k. आपके पास कोई भी kth term generate या evaluate हो सकती with some initial values that are given to us. That is the value of this sequence at 0. 0 का यहाँ पर क्या मतलब है कि k की वैल्यू 0 है, and at 0 c of 0 is 1. With k equals to 1, that is C1, the value is 2. With the help of this given formula and with the help of these two initial values that are given to us, we have to find the value at 2, that is k equals to 2. We have to find k equals to 3, that is the term at the 3rd position and the term at the 4th position. ठीक? Okay, ji, let's start with it. Starting with k equals 2, that is finding C2. आपने सिंपल k के अंदर वैल्यू प्लग इन करनी है 2 की, और इस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रही हूँ. C ऑफ, बोले क्या इंडेक्स आएगा? मैम 1 आएगा. 1 आएगा.
सबस्क्रिप्ट है 1, इसको कभी भी c के साथ 1 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द इंडेक्सिंग, प्लस k इज 2 0 times c of 2 0 minus 2 0 plus 1. I hope यहाँ तक clear है. Now c of 2, c of 1 भी हमें given है, c of 0 भी हमें given है. c of 1 is basically 2 plus 2 times c of naught is 1 plus 1. This turns out to be what? 5. Acha ji. Now let's find for k equals to 3. That is finding c3. c3 is going to be c, पहले मैं फॉर्मूला को फॉलो करते हुए 3 minus 1 2 प्लस k की वैल्यू 3 है टाइम्स c of k minus 2 यानी 3 minus 2 1 plus 1. Plugging in the values. From where I am going to find c2? जो हमने फर्स्ट स्टेप में फाइंड किया है, ऑलरेडी हम c2 फाइंड कर चुके जिसकी वैल्यू क्या थी 5. सो 5 प्लस 3 टाइम्स c1 क्या था 2 प्लस 1, so that turns out to be 6 plus 5 11 plus 1 12. ठीक, so you can see that every term is dependent on the previous term. Similarly, we can quickly find c4, that is for k equals to 4. So c4 is c यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 plus 4 times c2 plus 1. So c4 is basically 12 जो हमने अभी फाइंड किया था प्लस 4 times c2 जो 5 फाइंड किया था हमने प्लस 1. So this turns out to be 12 plus 20 plus 1. क्या आंसर आया 33. ठीक हो गया जी. यहाँ तक कोई सवाल है तो बताएं. ओके जी, लेट्स डू another question here. Show that the sequence (1 minus 1 factorial, 2 factorial, minus 3 factorial, so on up to minus 1 power n times n factorial for n greater than or equals to 0 can be represented as sk is equals to minus k times s k minus 1 for all k greater than or equals to 1. ओके जी, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोलने जा रही हूँ, यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूजन होती है या वो मिस्टेक कर देते हैं. इस चीज को बेटा बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा. एक सीक्वेंस में और उसके एक रिकर्सिव फॉर्मूला में, क्या मैंने बोला है, सीक्वेंस और एक उसका फॉर्मूला, इन दोनों में सबसे मेजर डिफरेंस क्या है. ठीक, सीक्वेंस क्या होता है, जिसको आप ओपन करके टर्म बाय टर्म लिख लेते हैं. आपके सामने उसकी पूरी एक पिक्चर बनी हुई होती है, एक सीरीज बनी होती है, चाहे उसके अंदर फाइनाइट टर्म्स हो चाहे उसके अंदर इनफाइनाइट टर्म्स. जैसे अभी जो आपके सामने ये सीक्वेंस लिखा हुआ है, इज इट फाइनाइट और इनफाइनाइट? इनफाइनाइट है. कैसे पता चला इनफाइनाइट है? डोमेन फाइनाइट है, एन तक जा रहा है लेकिन एंड पॉइंट पता है. क्या मैंने बताया कि एन क्या है? मैम जो एन है, एन कोई भी नंबर होगा जो एंडिंग यहाँ से क्या आइडिया हो रहा है आपको? सर मैम इनफाइनाइट है. हाँ, ये इनफाइनाइट है. 0 है. क्या एन Zero के से ऊपर कोई start हो अपर रहा है. लिमिट आई भी है? नो मैम. नो, मैंने जस्ट एक स्टार्ट बता दिया है. क्या स्टार्ट बताया? ये 0 से बस शुरू हो जाए. एन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. ठीक,
यहाँ ये ठीक है, ये उसकी एक पर्टिकुलर जनरलाइज्ड टर्म है, लेकिन बेसिकली देयर इज नो बाउंड ऑन n, सो इट इज apparently representing a infinite sequence. हाँ, मैं कह दूं कि n is greater than or equals to 0 and less than or equals to 10. Now you can say that it is a finite sequence. ठीक, अच्छा, क्या है सीक्वेंस? जिसमें आपको एक एक टर्म नजर आ रही है. अच्छा, पहली टर्म ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है और आखिरी वाली ये है. और अगर आखिरी नहीं है तो डेफिनेटली वो डॉट 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 होगा, जो कि एक इनफाइनाइट सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक, अब मैं बात कर रही हूँ फॉर्मूला की, कि फॉर्मूला क्या होता है. ये है फॉर्मूला, ये है सीक्वेंस. कौन बता सकता है क्या मेजर डिफरेंस है दोनों में? कभी गलती से भी इसको आपने सीक्वेंस नहीं कहना. बोले. मैम फॉर्मूला को यूज करके हम सीक्वेंस बना सकते हैं, वेरी गुड. और सीक्वेंस से हम फॉर्मूला नहीं बना सकते. सीक्वेंस से फॉर्मूला नहीं बना सकते. मतलब हमें मतलब यही डिफरेंस है ना कि हम फॉर्मूला से दोनों सीक्वेंस देखिए, फॉर्मूला से सीक्वेंस भी बन सकता है, सीक्वेंस से फॉर्मूला भी बन सकता है. ठीक है, मेजर डिफरेंस क्या सही. है? फॉर्मूला क्या करता है? फॉर्मूला इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिंगल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस. मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक. फॉर्मूला इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिंगल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस. देखिए, यहाँ पे आपने इंडेक्स ए की लिखा हुआ है ना, के. अब आपकी मर्जी, आप इसमें k की 10 वैल्यूज पुट करें, आप इसकी 100 वैल्यूज पुट करें, आप इसकी 2 वैल्यूज पुट करें. आपके पास जब एक फॉर्मूला आ जाता है, विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला यू कैन इनफैक्ट एक्सप्लोर, इनफैक्ट यू कैन एक्सपैंड द सीक्वेंस. वो सीक्वेंस खुलकर आपके सामने आ जाता है. आपने इस आपके वंस यू हैव द फॉर्मूला इन हैंड, आपने उससे पहली टर्म फाइंड करनी है, आपने उससे दूसरी फाइंड करनी है, आपने उससे 10वीं टर्म फाइंड करनी है, वट एवर, सो यू कैन इवेल्युएट विद द हेल्प ऑफ. ठीक, तो फॉर्मूला इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर टर्म ऑफ द सीक्वेंस. सीक्वेंस क्या है? एक पूरी चीज, सीक्वेंस बना हुआ आपके सामने. सीक्वेंस कहते हैं किसको? कहते हैं फ्लो को कहते हैं ना, जिसमें टर्म्स वन बाय वन जनरेट हो रही हो. सो व्हाट इज द क्वेश्चन एट हैंड? हमें एक सीक्वेंस गिवन है जो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है. ठीक है, और हमने उस सीक्वेंस के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करना है, खुद से डिराइव करना है, और वो फॉर्मूला ये होना चाहिए. ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता था कि फाइंड अ रिकर्सिव फॉर्मूला फॉर द गिवन सीक्वेंस. लेकिन क्वेश्चन आपको किस तरह से गिवन है? शो दैट द सीक्वेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस, और इन अदर वर्ड्स द सीक्वेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस फॉर्मूला. ठीक, अच्छा, अब हमने बेसिकली वेरीफाई करना है कि हमारे पास क्या यही फॉर्मूला आ रहा है या नहीं आ रहा. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द सीक्वेंस, ये जो मैंने आखिर में टर्म लिखी है, ये बेसिकली सीक्वेंस की किसी भी nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है ना, सीक्वेंस इटसेल्फ एंडलेस है, उसका एंड नहीं है ये, इसको ये नहीं समझना कि ये एंड है. मैं क्या कह सकती हूँ कि इस सीक्वेंस की कोई भी nth टर्म, चाहे वो पहली हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, ठीक, उसको मैं किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? -1 पावर n टाइम्स n फैक्टोरियल. ठीक, वेरीफाई करके देख लेते हैं. एन अगर मैं 0 पुट करूं, यानी ये वाली टर्म S0 हो गई ना, ये वाली टर्म S1 हो गई, ये S2 हो गई, ये S3 हो गई, क्योंकि मुझे कहा गया है कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. n स्टार्ट कहां से हो रहा है? 0 से. अच्छा जी, S ऑफ 0 क्या होगा? -1 पावर 0 टाइम्स 0 फैक्टोरियल, और ये बेसिकली क्या आ जाएगा? 1. बेटा मीटिंग डिस्कनेक्ट हो तो रीज्वाइन कर लीजिएगा. S1 है तो क्या होगा? -1 पावर 1 टाइम्स 1 फैक्टोरियल, वो बेसिकली क्या आ जाएगा? -1 फैक्टोरियल, क्योंकि -1 पावर 1 1 ही होगा. S ऑफ 2 को चेक कर लेते हैं. -1 का स्क्वायर टाइम्स 2 फैक्टोरियल, तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, तो ये आ गया 2 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन. ठीक, सो every nth term of a sequence is represented by -1 पावर n फैक्टोरियल. मैंने इस सीक्वेंस को देखते हुए ये लिखा कि हाँ, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है.
जहां पे नंबर इवन है उसके साथ पॉजिटिव साइन है, जहां नंबर ऑड है वहां पे क्या है, नेगेटिव साइन। यहां तक क्लियर है सबको? यस मैम। अच्छा, अब मैं इसको मैं इरेज कर रही हूँ और यहाँ से ही शुरू करती हूँ। हमने अब इसी को बेस बनाते हुए ये जो मैंने लिखा हुआ है ये फॉर्मूला लेकर आना है, ठीक है। अच्छा, अगर एस एन इसके इक्वल है तो मैं अगर एस को मैं के से रिप्लेस कर दूं, यानी एन की जगह के ले आऊं, तो उससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। मैं जस्ट के की टर्म्स में क्यों जा रही हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला मुझे के की टर्म्स में गिवन है। अगर ये भी एन की टर्म्स में गिवन होता तो मैं इसको चेंज ही ना करूँ, ठीक। तो जस्ट चेंजिंग द वेरिएबल दैट इज रिप्लेसिंग एन विद के, -1 पावर के टाइम्स के फैक्टोरियल, ठीक। कुछ नहीं किया मैंने, एन की जगह सिर्फ के को रिप्लेस किया। अच्छा, अगर एस ऑफ के इसके इक्वल है, देन कैन यू टेल मी व्हाट विल बी एस ऑफ के -1? बिल्कुल स्ट्रेट अवे इस फॉर्मूला को जो आपके सामने लिखा हुआ है इसको फॉलो करते हुए, अगर एस के इससे इक्वल है, के -1 क्या होगा? -1 के पावर -1 वेरी गुड। फिर क्या लिखूं? और के -1 का फैक्टोरियल वेरी गुड। सिंपल के को किससे रिप्लेस किया मैंने? के -1 से। के -1 से। वेरी गुड। ये के था, इसी जगह मैंने के -1 कर दिया, तो पूरी राइट हैंड साइड पे जहां जहां मुझे के नजर आया उसको मैंने रिप्लेस कर दिया के -1 से। ठीक है जी। अच्छा, नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय माइनस के, ठीक। माइनस के टाइम्स एस ऑफ के -1 is equals to minus k times -1 power k -1 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे। इसको मैं लिख रही हूँ -1, थोड़ी सी मैनिपुलेशन कर रही हूँ इसी में क्योंकि सब चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है। ये स्टेप देखते हैं अगर क्लियर है या नहीं है। कुछ भी नहीं किया मैंने, सिंपल माइनस को के से अलग करके उसको वहां पे मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है सबको? यस मैम। ये जो माइनस के था ना, इसका -1 यही रह गया और के को मैंने इससे जाके मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अच्छा, अब जरा ये देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 6 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, कैसे फाइंड करते हैं हम 6 फैक्टोरियल? मैम 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 6.5.4.3.2.1 ऐसे करते हैं ना, ठीक। यस मैम। अच्छा, इसको मैं यूं लिख सकती हूँ कि 6.5 फैक्टोरियल, यस मैम। लिख सकती हूँ ना, यानी ये पूरी चीज क्या हो गई, 5 फैक्टोरियल हो गया, और ये मैंने 6 अलग कर दिया, ठीक है। यानी क्या मैं इसको अगर जनरलाइज फॉर्म में लिखूं कि अगर मेरा n 6 था तो मैं इसको लिख सकती हूँ n टाइम्स n-1 फैक्टोरियल। एग्रीड? यस मैम। सेम यही चीज नहीं आ गई यहाँ पर, k टाइम्स k -1 फैक्टोरियल। तो बेसिकली k टाइम्स k -1 फैक्टोरियल क्या है, n फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया, k फैक्टोरियल हो गया, यानी -1 टाइम्स -1 पावर k -1 टाइम्स k फैक्टोरियल। यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ -k टाइम्स s ऑफ k -1। यहाँ तक देखने कोई चीज नहीं क्लियर तो अभी बताएं। क्लियर है? यस मैम। अच्छा अच्छा, अब मैं इसी को यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ, -k टाइम्स s ऑफ k -1 इज इक्वल्स टू, लेट मी रीराइट इट, -1 टाइम पावर, सॉरी, k -1 टाइम्स k फैक्टोरियल।
अच्छा जी, सो माइनस के टाइम्स एस के माइनस वन इज इक्वल टू, बेसिस इक्वल है ना दोनों की, -1 है -1 है, पावर्स ऐड हो सकती हैं, सो के माइनस वन प्लस वन टाइम्स के फैक्टोरियल, दिस टर्न्स आउट टू बी -1 पावर, ये कैंसिल हो गया दोनों, Yes, ma'am. के आ गया टाइम्स के फैक्टोरियल, और यहाँ पे है माइनस के टाइम्स एस के माइनस, ठीक, सो माइनस के टाइम्स एस के माइनस वन इज इक्वल टू व्हाट? नाउ वेरी important point, what S of K, is this in fact equals to? S of K. वेरी गुड, ये वही चीज नहीं है जहां से हमने स्टार्ट किया था, और हमने इसको किसके इक्वल डिनोट किया था? एस ऑफ के. सो basically the kth term of the formula is minus k times s k. Proved. क्लियर है यहाँ तक? मिस अगर फार्मूला से सीक्वेंस लिखना चाहें तो वो तो बेटा बहुत ही आसान है, ये आपके सामने लिखा हुआ है ना फॉर्मूला, चलें इसको करते हैं. S of k is equals to minus k times s of k minus 1. Now be very particular about this thing कि k कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, k is greater than or equals to 1, ठीक. Now s of 1 is equals to minus 1 times s of 1 minus 1 0. ये सबको समझ आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक. अब यहाँ पे सवाल क्या है, व्हाट इज एस नॉट? सो अभी जैसे मैंने डेफिनेशन भी लिखी थी सीक्वेंस की, रिकर्सिव सीक्वेंस की, वी आर डेफिनेटली गिवन विद सम इनिशियल कंडीशन, ठीक है. सो विद दिस फॉर्मूला वी विल बी गिवन विद द इनिशियल कंडीशन दैट इज एस नॉट इज 1. नाउ S1 is going to be minus 1 times 1, that is minus 1. अच्छा, अब करते हैं S of 2 फाइंड करते हैं. minus 2 times S of क्या हो गया, K minus 1 यानी कि 1. तो S of 2 is equals to minus 2 times minus 1, क्या आ गया 2. अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो 1 लिखा हुआ है, इधर -1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, क्या ये वैल्यूज उसके इक्वल नहीं है? -1 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? इसी के इक्वल होगा ना. 2 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा? 2.1 यानी कि 2 फैक्टोरियल ही होगा, ठीक. तो बेसिकली सीक्वेंस से भी आप उसी टर्म की एक एक वैल्यू वैल्यूएट कर सकते हैं. इट इज वेरी इजी टू गो टू मेक अप अ सीक्वेंस विद अ गिवन फॉर्मूला, बट द अदर वे अराउंड इज डिफिकल्ट कि आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है और आपने उसकी मदद से एक फॉर्मूला या रिकर्सिव उसके अंदर एलिमेंट जो है उसको लेकर आना, ठीक. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. Consider a sequence defined by a formula an is equals to 3n plus 1, right? Show that the sequence satisfies the recursive relation. Recursive relation का मतलब है recursive formula.
AK is equals to AK minus 1 प्लस, बिल्कुल जैसे भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें हमें पूरा सीक्वेंस नहीं गिवन, हमें उसकी एक nth टर्म गिवन, जिससे हमने nth टर्म को डिनोट किया था बाय -1 पावर n टाइम्स n फैक्टोरियल्स। ठीक, ओके जी, लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। an is equals to 3n plus 1। ठीक, तो doing the same task here, replacing n with k, ak is equals to 3 times k plus 1। ठीक, n को जस्ट k से रिप्लेस, यानी kth टर्म सीक्वेंस की फाइंड करें। ठीक, if ak, that is the kth term of a sequence, is this, what about k minus 1, that is a of k minus 1, क्या लिखूं? Three times k will be replaced by k minus 1. k minus 1 plus 1, right? Now adding 3 on both sides, a of k minus 1 plus 3 times k minus 1 plus 1 plus 3. ठीक, so a subscript k minus 1 plus 3 is equals to 3k minus 3, इसको मैं ओपन करके लिख रही हूँ, प्लस 1 प्लस 3, ये दो टर्म्स कैंसिल हो गई, a of k minus 1 plus 3 is equals to 3k plus 1. What should I write next? हाँ, ये basically 3k plus 1 is basically equals to a, and that is the required formula. Can you construct a sequence here? What will be the first term, what will be the second term, and so on? यस मिस, लेकिन के का पता नहीं है शुरू कहाँ से करना। Okay, let's start with 1. What will be the first term? मैम 2 होगी। 2 होगी, नो मैम 4 मैम। 4 होगी, second term, that is k equals मैम to 2, 7। 7. किस फॉर्मूला को फॉलो करें? मैम सेकंड नंबर पे ए के वाला। इसको करें या इसको करें? मैम सेकंड वाले को फिलहाल तो करें। ये वाला आखिर वाला? नो मैम सेकंड लाइन पे जो लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, ये ठीक वाला ठीक ठीक है, ठीक। क्या डिफरेंट आंसर्स आएंगे दोनों से? वैसे अगर दोनों बराबर हैं तो डिफरेंट नहीं आएंगे, कभी भी डिफरेंट नहीं आएंगे। दिस इज ऑल्सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, देखें ये क्या है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, सिंगल टर्म। हाँ, kth term of the
sequence. Is there any recursiveness in this form? No, ma'am. No. ठीक, अब आ जाए इसकी तरफ. This is also representing the kth term of a sequence, but with recursiveness. ये बात क्लियर है सबको? मैं दोबारा रिपीट कर Yes, रही हूँ. ma'am. जब लिखा हुआ है ak is equals to 3k plus 1, सिंपल. ये भी देखें, दोनों की साइड सेम है. ये भी a of k है, ये भी a of k है. इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना कि ये दोनों डिफरेंट है. ये दोनों एक ही चीज के दो डिफरेंट फेसेस हैं. ये रिप्रेजेंट कर रहा है kth term of a sequence, but here no recursiveness is involved. ठीक है? This is also representing the kth term of the sequence, but with recursiveness. एक ऐसी फॉर्म आपको दे रहा है जिसमें आपको ये पता चल रहा है कि k अपनी प्रीवियस टर्म पे भी डिपेंडेंट है. क्योंकि देखिए, हर सीक्वेंस रिकर्सिव नहीं हो सकता. कुछ सीक्वेंसेस होंगे जिसमें डिपेंडेंसी होगी प्रीवियस टर्म्स पे. कुछ सीक्वेंस ऐसे भी होंगे जो रिकर्सिव ही नहीं होंगे, उनके अंदर कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी. And for those sequences, we can't go for a recursive formula, right? Okay, ji, let's solve one last question. मैम अभी हमारी नेक्स्ट क्लास है, सर बुला रहे हैं. Just 3 minutes हैं, 5 minutes हैं. ठीक है, बस एक सवाल है आखिरी. अगर आपका टाइम हो गया तो बेशक आप लीव कर दीजिएगा. मैं लेक्चर फिर भी अपलोड कर दूंगी ये रिकॉर्डिंग. Consider a sequence defined by formula an is equals to 2 power n minus 1. Show that the sequence satisfies the recurrence relation ak is equals to 2 times a k minus 1 plus 1. Let's quickly solve it. A n is equals to 2 power n minus 1. A k is equals to 2 power k minus 1. So what is a of k minus 1 going to be? This is in fact 2 raised to the power k minus 1 minus 1. That is a of k minus 1 is 2 raised to the power k minus 1 minus 1. Now multiplying both sides by 2, 2 times a of k minus 1 is equals to 2 times 2 power k minus 1 minus 2. टर्म बाय टर्म दोनों से मल्टीप्लाई हो रहे हैं. So 2 times a of k minus 1 is 2 times k minus 1 plus 1. Bases are same, minus 2. So 2 k minus 1 is basically 2 power k minus 2, right? Yes, ma'am. Okay. 2 k minus 1 is 2 raised to the power k. Can I write this minus 2 as minus 1 minus 1? Yes, ma'am. लिखा जा सकता है ना? ठीक. So 2 times a power k minus 1. Bringing this minus 1 on the other side, this is going to be plus 1. And on the right hand side, I am left with
2 पावर k माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. अच्छा जी, सो 2 पावर a ऑफ k माइनस 1 प्लस 1 इज इन फैक्ट सेम वही चीज आ गई ना, a ऑफ k। So this is the required recursive formula.